morning student. This video for class 9 students. Yesterday we have started the chapter trigonometric ratios. Okay, in this chapter we have learned that what is trigonometric ratio, how many trigonometric ratios are there, how it formed. Okay, now today I am going to tell you, if you have the value of one trigonometric ratio, how to calculate the value of another trigonometric ratio. Okay, that thing you have to see. So first of all, through one question I will explain this concept. The question is, find the values of tan theta, cos theta and cosec theta if sin theta is equal to 3 upon 5. 3 upon 5. Okay, means we have sin theta is equal to 3 upon 5, and on the help of this value sin theta is equal to 3 upon 5, we have to find the value of tan theta, cos theta and cosec theta. ठीक, सो इसको हम करेंगे कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले काम ये करना होगा कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि साइन क्या होता है. साइन होता है p अपॉन h. तो sin theta is basically 3 upon 5, it is p upon h. So therefore here we have this Pythagoras relation, h square is equal to p square plus b square. So through this relation the value of h is 5 square, p is 3 square and b square. So it is 25 minus 9 equal to b square. So finally the value of b will be under root 16 and it will be 4. The value of b is coming 4. Okay. Now b we have calculated. P we have 3 and the value of p is 3. The value of h is 5 and the value of b is 4. Now we are interested about tan theta. So tan theta is equal to, it is p upon b. So the value of p is 3 and the value of b is 4. So this 3 upon 4 is the final answer of tan theta. ठीक है. उसके बाद है cos theta. Cos theta is equal to how much? Cos theta is b upon h. So b we have calculated 4 and h is already there in 5. So 4 upon 5 is the second part answer. This is first part, this is second part. Now what about the third part? The third part is cosec theta. Third part is cosec theta. And cosec theta is basically or reciprocal of sin theta. So directly you can write 5 upon 3. But here you see, you can write the formula. The formula is h upon p. So the value of h is how much? H is 5 and p it is already 3. So 5 upon 3 is the answer. So this is the right way to convert from one trigonometric ratio to another trigonometric ratio. Okay. So this we have learned, and you should note down this thing in your fair copy. Just go through it properly. Okay. So this you have to see. Now student, you see the question number 1 B part. Yesterday we have completed question number 1 A part. Now B part you see. The triangle is given. This is ABC triangle. Angle 90. Angle C is 90 degree and it is 12. It is 15. Now this hypotenuse it is not available. So this h you can calculate. Okay. So the formula is h square is equal to p square plus b square. So it is 12 square plus base is 5 square. So it is 144 plus 25. This is 169. Therefore h is equal to under root 169. It is 13. ठीक है. h की वैल्यू 13 आ गई. अब आपको एक एक पार्ट करके सभी की निकालना है. जैसे सबसे पहले निकालना है साइन ए. तो आप साइन ए निकालने के लिए क्या करोगे? आप इस फिगर को आप जैसे इन्वर्ट करो, मतलब आप अपने सामने रखो. आप सोचो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है. तो आपको निकालना है, क्योंकि साइन ए निकालना है आपने, तो साइन ए मतलब 90 के फ्रंट में ये है, तो बेस ये होगा. आप बेस इसको नहीं बना सकते, बेस इसको बनाएंगे आप. ठीक है, क्योंकि साइन ए निकालना है आपने, तो 90 के फ्रंट में ए है. तो इट इज sin A means perpendicular upon hypotenuse. So 5 upon h. So 5 upon h means 5 upon 13 is the first answer. Now cos A again base upon hypotenuse, so 12 upon h.
तो 12 upon 13, which is second answer. Now third answer is based on sin and cos. So sin square a plus cos square a. तो sin a की जो वैल्यू है 5 upon 13, इसका स्क्वायर करो और ये 12 upon 13 का स्क्वायर करो, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करो. तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना इसे, so it will become 169 upon 169 आ जाएगा और इसे काट करके 1 आ जाएगा. It means इसका आंसर 1 होगा. सिमिलरली अब sec का स्क्वायर करना है, लेकिन sec क्या होता है? sec जो है आपके पास होता है h अपॉन b, h अपॉन 12. तो h कितना था हमारा 13 अपॉन 12 का होल स्क्वायर माइनस 10 होता है हमारा p अपॉन b, तो मीन्स 5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर. सो इट इज 169 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 144. तो 169 माइनस 25 कितना 144 अपॉन 144, तो कैंसिल होकर इसकी आंसर 1 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर 1 आ गया. आप देखो प्रॉपर्ली से, नोट डाउन इट प्रॉपर्ली. नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. दिस इज ए पार्ट बेसिकली. ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें फिगर भी प्रोवाइडेड है. दिस इज 6, hypotenuse is 10 and base is not available, or you can say it is perpendicular or it is base, but hypotenuse will be 10 only. So how to calculate this AC? So you can write here 10 square is equal to 6 square plus AC square, isn't it? क्योंकि hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. You can write like this. So it will be 100 is equal to 36 plus AC square. So 100 minus 36, it is AC square, and it is 64 is equal to AC, and its root is 8. So the value of AC you have just calculated, it is 8, and you can write it here, isn't it? अब आप 8 भी लीजिए, 6 अभी सभी आपको मिल गया. अब अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन b. सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? साइन b की वैल्यू निकालनी है. तो साइन b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेस ये इस तरह से यहाँ से फिगर को देखना है, क्योंकि 90 के फ्रंट में b पड़ रहा है. तो आपको साइन b निकालने के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा. तो आपका फॉर्मूला होता है p अपॉन h. ठीक है, तो p क्या हुआ है? p आपका 8 हो गया और h क्या है आपका 10 है. तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दिस इज 4 अपॉन 5. तो आपका पहला आंसर 4 अपॉन 5 बन जाता है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आता है cos c. अब cos c के लिए देखो आपको इधर से नहीं देखना पड़ेगा. अब cos c के लिए आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये बेस होगा, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये वाला पोर्शन. इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर. अभी देखो हमने क्या किया, जब साइन b निकाला था तो हमने बेस इसको माना था. ठीक है, परपेंडिकुलर ये था. लेकिन जब हम cos c बोल रहे हैं, cos c, तो आपको इधर से देखना होगा, क्योंकि आपके 90 के फ्रंट में c बनना चाहिए. तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया. तो यहाँ पर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज तो 10 ही रहेगा. हाइपोटेन्यूज में कभी कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, ये आपका हो गया 2 4 जाए 2 5 जाए 10. तो 4 अपॉन 5, फिर आपका आंसर दोबारा से आ गया. देखो वही. ठीक, आपको मतलब इधर से जो साइन b के लिए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल इंपॉर्टेंट है. ये b है, ये एंगल c है, इसलिए फर्क है कि हम कहां से फिगर को देखें. अगर मैं साइन b कह रहा हूं तो इधर से देखना है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया. लेकिन मैं जब cos c बोल रहा हूं तो आपको ऊपर से देखना होगा, इधर से. ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा. ठीक, इसलिए 4 अपॉन 5 है. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है साइन b. साइन b निकालना है. साइन b प्लस साइन c, इन दोनों को प्लस करना है, जो दो इन दोनों की वैल्यू आई. तो साइन b तो आपने अभी भी निकाला था, 4 अपॉन 5 ये लिख दो. लेकिन अभी साइन c नहीं निकाला होगा आपने, तो साइन c भी निकालना पड़ेगा. तो साइन c के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से देखना होगा. तो साइन c के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 6 अपॉन 10. 6 अपॉन 10 इसको काट भी सकते हो. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. तो आपके पास हो गया, नीचे 5 आ गया, दोनों में एलसीएम. तो 4 + 3 7, 7 अपॉन 5 इज द फाइनल आंसर. इस तरह से बन गया. अब आपके पास नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो है साइन b. इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं. साइन b है, साइन b हमने निकाला हुआ था 4 अपॉन 5, ये रख दो 4 अपॉन 5. cos c कहां से, cos c भी निकला हुआ है 4 अपॉन 5, ये भी रख दो. साइन c हमने अभी फिर निकाला था 3 अपॉन 5, ये हो गया. और cos b हमने नहीं निकाला हुआ है. तो cos b निकालने के लिए हमें यहाँ ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने sin b से निकाला है तो cos b भी इधर से निकालेंगे. तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 6 अपॉन 10.
इसको काटो, 2 3 जा 6, 2 5 जाते हैं, तो ये बन गया 16/25, 16/25 प्लस 9/25, तो 16 प्लस 9 25 होते हैं, 25/25 आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो वन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को कर लिया। तो इस टेक्निक को आपने समझना है, ठीक है, और इसका हिंट लेकर के बाकी क्वेश्चंस को भी करना है, ठीक। तो इसका हिंट लेकर के आज आपने क्या काम करना है, क्वेश्चंस को आप लोग कर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चंस कर सकते हो टोटल 15 क्वेश्चंस तक तो कर लो आप, ठीक है, 15 क्वेश्चंस तक आप आज फिनिश कर लो, ठीक। ओके, थैंक यू।